Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the new chapter cell cycle and cell division, in which I have discussed one of the phase of cell cycle, that is interphase. Now in this video, I will discuss the second phase of cell cycle, that is M phase. So let us start the class. So students, today I am going to discuss about the second phase of the cell cycle, that is M phase. M phase is exactly that phase of cell cycle in which cell divides to form daughter cells. This M phase can be of two types, or you can say cell division can be of two types, that is mitosis and meiosis. Mitosis occurs in somatic cells and meiosis occurs in reproductive cells. As you know that a multicellular organism, eukaryotic organism, consists of two types of cells, one reproductive and another one is somatic cells. Reproductive cells are those cells which forms gametes, and somatic cells are all the cells of body except reproductive cells. And these reproductive cells undergoes meiosis. Reproductive cells में meiosis होता है and these reproductive cells forms gametes with the help of meiotic division. And mitosis occurs in somatic cells. Now, first of all, we will study about the first type of cell division, that is mitosis. Mitosis क्या है? Exactly, mitosis is an equational division in which chromosomes replicate and get equally distributed in the two daughter nucleus or two daughter cells. दो daughter cells में equal distribution होता है chromosomes का. For example, ह्यूमन बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है सोमैटिक सेल्स, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड इफ अ सेल कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड्स बाय माइटोसिस, देन द टू डॉटर सेल्स formed after mitosis will contain 46 chromosomes, means daughter cells will contain equal number of chromosomes or same number of chromosomes that is present in the parent cell. And since equal number of chromosomes are distributed in two daughter nucleus, that's why mitosis is also called as equational divisions. One more thing, that mitosis is also called as somatic cell division. Why? Since mitosis occurs in somatic cell, that's why mitosis is also called as somatic cell division. Now this mitosis occurs in two steps. माइटोसिस के दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, मीन्स इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं. एंड सेकेंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस जो है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, मीन्स साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस is a nuclear division, and this nuclear division includes 4 steps. The first one is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and fourth is telophase. Students, you can see in the diagram that this cell is in the stage of interphase, and if you remember, I have discussed in the last video that interphase consists of 3 stages, that is G1, S phase and G2 phase. And in S phase, these chromosomes used to get replicate or DNA get replicates. और जब chromosomes replicate होते हैं तो उसमें एक centromere और 2 chromatids होते हैं. This means if we take the example of human cells, then at this stage, at the last of interphase, chromosomes are 46 and the chromatids are 92. But इसका जो शेप है वो इस तरह का नहीं होता. जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अभी भी एक दूसरे से इंटैंगल होते हैं इन अ फाइब्रस फॉर्म, राइट. और इंटरफेज के सिंथेटिक फेज में एक और चीज़ होती है, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, राइट. अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेल्स प्रोफेज में एंटर करते हैं, मीन्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस और यू कैन से द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. तो क्या होता है, जो प्रोफेज है वो हम स्टडी करते हैं 2 स्टेजेस में, अर्ली और लेट प्रोफेज में, बट वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स इन जनरल फॉर्म. प्रोफेज में होता क्या है? द फर्स्ट थिंग विच ऑकर्स इन प्रोफेज इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दिस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज द मार्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज. कंडेंसेशन मीन्स जो ये क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि
फाइबर्स के फॉर्म में है वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू करते हैं, मीन्स वो कंडेंस होना शुरू करते हैं और इस तरह के शेप में आ जाते हैं, मीन्स इस शेप में कि हमें वो विजिबल हो इस तरह के उनके स्ट्रक्चर्स में, राइट, कंडेंस फॉर्म में पहुंचते हैं। धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे ये कंडेंस्ड होते हैं तो यू कैन सी दैट टू क्रोमेटिड्स are attached to one centromere. You can see here also that these two chromatids are attached to one centromere, right? Third thing happens in the prophase is that a disc-like structures forms around the centromere. ये जो centromere है, हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के चारों तरफ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। तो काइनेटोकोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये काइनेटोकोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, यू विल सी इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द karyokinesis. Now, the another thing which occurs in prophase is that these two centrosomes, ये जो सिंथेटिक फेज में डुप्लीकेशन के बाद दो सेंट्रोसोम्स बने हैं, these two centrosomes migrate to अपोजिट पोल्स, दो अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट। इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं दैट इज द न्यूक्लियोलस, दिस न्यूक्लियर इन्वेलप एंड ऑल दीज ऑर्गेनल्स यूज टू डिसअपियर। इस स्टेज में सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज मेटाफेज. And this starting of metaphase is the complete disintegration or disappearance of nuclear envelope. Means nuclear envelope completely disappear हो जाता है, वो stage या वो state होती है starting of metaphase. अब मेटाफेज जो है ये एक ऐसा स्टेज है इन विच क्रोमोसोम्स आर एट देयर मोस्ट कंडेंस स्टेज. मीन्स ये वो स्टेज है जब क्रोमोसोम्स अपनी मैक्सिमम कंडेंस स्टेज पे हैं एंड एट दिस स्टेज ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ chromosomes can be studied under microscope easily. Okay, the second thing which occurs in the metaphase is that formation of spindle fibers. ये जो fibers, ये long straight आप जो देख रहे हैं ये spindle fibers हैं. I have discussed earlier also that spindle fiber formation is very much important for cell division, right? अब spindle fibers जो है वो दो तरह के spindle fibers बनते हैं. One is continuous and another is discontinuous. The continuous spindle fiber जो है it starts from one pole. It starts from one pole and continues to the second pole. Means एक पोल से स्टार्ट होता है और दूसरे पोल तक वो continuous होता है. But discontinuous spindle fibers जो होते हैं it starts from one pole but it binds to the काइनेटोकोर. ये एक पोल से दूसरे पोल तक कंटिन्यूस नहीं होता, एक पोल से स्टार्ट होता है एंड इट बाइंड्स टू दी काइनेटोकोर इन द मिडल. ये धीरे से फिर ये काइनेटोकोर से ये बाइंड करता है. तो आप कह सकते हैं कि काइनेटोकोर जो है, जो काइनेटोकोर्स थे, disc like structure which is forming around the centromere are the binding site of the spindle fiber. Exactly, spindle fiber की binding sites क्या है? The kinetocores of the chromosomes. अब इसके बाद क्या होता है मेटाफेज में, दैट इज क्रोमोसोम्स जो हैं इट गेट अलाइंड और इट गेट अरेंज्ड इन द मिडल ऑफ द सेल. जो ये सेल के मिडल में आप ये कह सकते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द सेल. इक्वेटर पे ये एक लाइन में अलाइंड हो जाते हैं या अरेंज्ड हो जाते हैं एंड दिस अलाइनमेंट और दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ मेटाफेज प्लेट which is equidistant from the two poles. दो poles से equally distance पे ये arranged है chromosomes forming the metaphase plate. And you know students, this metaphase plate formation is the marking characteristics of metaphase. Metaphase का जो सबसे marking characteristic है, जो important characteristic है, ये यही है कि metaphase में metaphase plates बनते हैं. एक और चीज़ notable ये है कि plant cells में ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रोसोम्स नहीं होते. तो फिर वहाँ क्या होता है? इन प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ सेंट्रोसोम अनदर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन दैट इज पोलर कैप्स. नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस इज एनाफेज. तो एनाफेज जो है, एनाफेज की कैरेक्टरिस्टिक
features क्या है? The first thing which occurs in anaphase is that the centromeres splits into two halves. दो हाफ में स्प्लिट होते हैं और इसकी वजह से ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो भी अलग हो जाते हैं. And the another thing which occurs that this discontinuous spindle fibers starts pulling these sister chromatids away from each other. धीरे धीरे वे ये जो discontinuous स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे काइनेटोकोर से वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से दूर अलग अलग पोल पर खींचना शुरू करते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर ड्यूरिंग दिस पुलिंग जो क्रोमोसोम्स है उसका अलग अलग शेप हो सकता है. आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रोमेयर है वो पोल्स की तरफ है. सेंट्रोमेयर जो है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो आर्म्स हैं वो सेंटर की तरफ जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है. तो आप देख सकते हैं कि एक शेप बन रहा है. अगर जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है सेल चैप्टर में कि सेल्स जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. मीन्स दे कैन बी मेटासेंट्रिक, दे कैन बी सब मेटासेंट्रिक, दे कैन बी टेलोसेंट्रिक. तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर इस वक्त जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं उस वक्त या तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो वी शेप बनाएंगे या फिर इट कैन फॉर्म अ एल शेप. अगर मेटासेंट्रिक हुए, अगर क्रोमोसोम्स मेटासेंट्रिक है मीन्स अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के तो वो मूवमेंट के दौरान वी शेप बनाएंगे. एंड इफ इट इज़ नॉट मेटासेंट्रिक, इट इज़ सब मेटासेंट्रिक, देन इट विल फॉर्म आइदर जे शेप और इट विल फॉर्म एल शेप. अब धीरे धीरे होता क्या है कि ये मूव करते जाते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड से एक दूसरे से अलग. एंड एट द एंड ऑफ एनाफेज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैज असेंबल्ड एट ईच पोल ऑफ द सेल. मीन्स जो चार क्रोमोसोम्स जो चार सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये चार सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ और चार यहाँ, मीन्स चार क्रोमोसोम्स यहाँ और चार क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर, दोनों ही पोल पर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो असेंबल हो जाते हैं. अगर हम ह्यूमन बींग्स के सेल्स में सेल के डिवीज़न की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स दोनों ही पोल पर अरेंज हो जाएंगे. मीन्स यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स जो हैं लास्ट एनाफेज के एंड में दोनों पोल पे असेंबल हो जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है टेलोफेज. टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज जो है एग्जैक्टली इट इज द रिवर्स फेज ऑफ द प्रोफेज. मीन्स आप इसे रिवर्स प्रोफेज स्टेज भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर होता ये है कि सारे के सारे जो भी क्रोमोसोम्स पोल्स पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे इट स्टार्ट्स अनकॉइलिंग. मीन्स धीरे धीरे क्या होते हैं ये अनकंडेंस स्टेज में पहले कंडेंस्ड हुए थे अब फिर से कॉइल्ड होना शुरू होंगे, फिर से ये क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं जैसे कि ये इंटरफेज स्टेज में थे. राइट. फिर जो स्पिंडल फाइबर्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन दिस स्टेज इन टेलोफेज इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. जो स्पिंडल फाइबर है एनिमल सेल्स में तो स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं बट इन प्लांट सेल्स सम ट्रेसेस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स रिमेन्स देयर. ओके, ये याद रखिए ये एक डिफरेंस है टेलोफेज में एनिमल सेल और प्लांट सेल के कि स्पिंडल जो है स्पिंडल फाइबर्स एनिमल सेल्स में टेलोफेज स्टेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं बट प्लांट सेल्स में कुछ ट्रेसेस जो हैं वो स्पिंडल फाइबर के रह जाते हैं. इसके अलावा फिर यहाँ पर जैसे कि इंटरफेज में था न्यूक्लियर इन्वेलप जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, सारे ऑर्गेनल्स इट ऑल स्टार्ट्स रीअपियरिंग. फिर से सब कुछ रीअपियर होना शुरू होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एवरीथिंग ऑल द ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स रीअपियरिंग. यू कैन सी इन द डायग्राम दोनों ही एनिमल और प्लांट सेल में ये चीज़ें हो रही हैं. बस डिफरेंस ये है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो प्लांट सेल्स में अभी भी उसके कुछ ट्रेसेस जो हैं टेलोफेज में रह जा रहे हैं. नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इज द साइटोप्लाज्म डिवीजन विच ऑकर्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस मीन्स आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन.
आपने देखा कि टेलोफेज जो कि कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज था, लास्ट फेज था, उस फेज में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुके हैं, 2 बन चुके हैं न्यूक्लियस, एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव ऑल्सो असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस, और बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, इट ऑल एवरीथिंग हैव केम बैक, सब अपीयर फिर से हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनाने के लिए जो दूसरा स्टेज है वो है इस पूरे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना, एंड दिस इज द साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स. In animal cells, this cytokinesis occurs through फ्यूरो फॉर्मेशन. फ्यूरो मीन्स जो आप कहते हैं एक छोटे दबाव के फॉर्म में शुरू होता है, तो फ्यूरो फॉर्मेशन से ये साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस फ्यूरो डीप्स सेंट्रीपेटली मीन्स ये अंदर की तरफ फोर्स इसमें लग रहा है, और फ्यूरो जो है वो धीरे धीरे डीप होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा डीप होते होते लास्टली ये जो फ्यूरो है वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, एंड दिस फ्यूरो विल ज्वाइन, एंड लास्टली द 2 डॉटर सेल्स विल फॉर्म. तो साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल्स में है इट ऑकर्स बाय फ्यूरो फॉर्मेशन. नाउ वी विल सी दी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स. इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है इट ऑकर्स थ्रू दी सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है. कैसे, ये देखते हैं. As I have told you that in the plant cell, in the case of plant cell, during telophase, some traces of spindle fibers remains there, and using these traces in the center, a structure is formed with the help of Golgi body vesicles. Golgi apparatus के vesicles के collection से एक center में एक structure बनता है इस spindle fibers के traces की help से, and this structure is called as phlegmoplast, and further this phlegmoplast converts into cell plate, और धीरे धीरे ये जो सेल प्लेट है it grows centrifugally. यहाँ पर क्या हो रहा था, सेंट्रीपेटली मीन्स अंदर की तरफ फ्यूरो जो है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा था, बट यहाँ सेल प्लेट्स जो बन रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगली इट विल ग्रो टुवर्ड्स आउटसाइड, ये आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं इसलिए सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ कहेंगे इसे. एंड दिस सेल प्लेट्स फर्दर जॉइंस द लैटरल वॉल आफ्टर ग्रोइंग, मीन्स पेरेंट सेल्स के जो लैटरल वॉल है ग्रो करते करते ये सेल प्लेट जो लैटरल वॉल है पेरेंट्स के वहाँ ज्वाइन करेंगे, एंड दिस सेल प्लेट इन फ्यूचर फॉर्म्स मिडिल लैमिला. यही सेल प्लेट जो है तो प्लांट सेल्स के बीच का जो जॉइनिंग सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल लैमिला, वो बनाता है ये सेल प्लेट, और इस तरह से डिवाइड होकर के जो है ये 2 प्लांट सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं. So students remember this, that cytokinesis in animal cells occurs by furo formation and cytokinesis in plant cells occurs by cell plate formation. This is very important. Okay, from this one question also arises, how a organism becomes multinucleated. जो multinucleated organisms हैं वो कैसे बनते हैं. Some organisms does not undergo cytokinesis. कुछ organisms cytokinesis उनमें होता ही नहीं है, उनमें cytokinesis ना होने की वजह से they forms a multinucleate condition. तो ऐसे organisms में multinucleate condition है वो बनता है. So students, this is all about mitosis and its step. तो mitosis क्या है? Mitosis is the cell division which occurs in somatic cell, and it consists of 2 steps, that is karyokinesis and cytokinesis. And karyokinesis is nuclear division and cytokinesis is cytoplasm division. And further cytokinesis is of 4 steps, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay. Now next is significance of mitosis or importance of mitosis. The first importance of mitosis is that it is essential for growth and development of multicellular organisms. Means सारे multicellular organisms जैसे कि human beings, बाकी animals या plants जो हैं उनमें growth और development के लिए mitosis बहुत important है, because it helps in maintaining the proper size of these multicellular organisms. The another importance of mitosis is that it maintains the chromosome numbers of each cell
in the multicell organisms. कैसे? Because this mitosis involves the duplication and equal distribution of chromosomes in the daughter cells. As we have studied in the process that mitosis के दौरान जो है chromosomes का duplication भी होता है और equal number में chromosomes दो daughter cells में distributed होते हैं, जिसकी वजह से जो required chromosome numbers हैं multicellular organisms के हर एक सेल में it used to get maintained because this chromosomes should be maintained. इसका जो chromosome number है वो maintain होना चाहिए for the proper function of cell and the proper function of multicellular organisms. The another importance of mitosis is for unicellular organisms. Since unicellular organism doesn't contains any specific sex organs for reproduction, this mitosis is the only mode of reproduction in unicellular organism to increase their number. The another significance of mitosis is that it helps in repairing and replacing old and worn out cells. Suppose कोई इंजरी है जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हुए हैं, तो उस जगह पर अगर सेल्स की रिपेयरिंग होनी है, the only division is the mitosis. So mitosis helps in the repairing of the damaged cells and it also helps in the replacement of old and worn out cells. कोई damaged old cells हैं तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी माइटोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. अब ये तो यूजेस थे या फिर सिग्निफिकेंस थी, इम्पॉर्टेंस थी माइटोसिस की. एक नेगेटिव पॉइंट भी है माइटोसिस का. If any cell is undergoing uncontrolled mitotic division, then it leads to cancer. हमारी बॉडी में जो माइटोसिस होता है वो एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम के अंडर होता है. तो अगर कहीं भी किसी भी सेल में uncontrolled mitotic division हुआ, then this uncontrolled mitotic division will lead to cancer. So students, this was all about mitosis. And that's all for this video. In next video, I will discuss about another type of cell division, that is meiosis. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.